introduction of the flowering plant, and now in this class we are going to start with the further topic of this chapter. Actually, we was discussing the outbreeding devices in the previous class. You remember we was talking about the inbreeding and outbreeding. हम बात कर रहे थे inbreeding और outbreeding के बारे में. हमने कहा था कि inbreeding is a phenomena when continuous self pollination occurs in plant. एक प्लांट में, एक प्लांट स्पीशीज में जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनब्रीडिंग ही होती जाए, सेल्फ पॉलिनेशन ही होती जाए, तो उससे क्या होता है? प्लांट गेट बेनिफिटेड और हार्म्ड. प्लांट को फायदा होता है या नुकसान होता है? व्हाट यू थिंक? इफ कंटिन्यूस इनब्रीडिंग अकर्स, आपके पास फॉर एग्जांपल एक पी प्लांट है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई, नेक्स्ट जनरेशन में फिर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई, तो इससे क्या होगा? इट इज बेनिफिशियल और हार्मफुल? It's harmful because it reduces the variation and thus it reduces the survival capacity, and thus this entire phenomena is called inbreeding depression. So for the plant, especially the plant which are bisexual, especially वो plant जो कैसे हैं? Bisexual हैं. In those plants, in monoecious plant, there is a problem that self pollination could be there, and that self pollination can induce the inbreeding depression, and that is why plant develops some devices by which they can inhibit the inbreeding and they can promote the आउटब्रीडिंग. इसीलिए प्लांट ने कुछ ऐसे डिवाइसेस डेवलप किए हैं जिसकी हेल्प से वो इनब्रीडिंग को सप्रेस करते हैं और आउटब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं. दैट मीन्स दे सप्रेस द सेल्फ पॉलिनेशन एंड दे प्रमोट्स द क्रॉस पॉलिनेशन, एंड दीज ऑल डिवाइसेस आर कलेक्टिवली नोन एज outbreeding devices. So first of the outbreeding devices we have discussed in previous class, that was dichogamy. What was that? Dichogamy. Can anyone tell me what do you mean by dichogamy, which include two things? Yes. Yes, that's the thing. That means lack of synchronization is there in this kind of outbreeding device. कुछ plants में देखने को मिलता है, whether they are bisexual. Bisexual है, एक ही plant में मेल और फीमेल दोनों reproductive part present हैं, but दोनों के maturation के time में फर्क है. Either the male reproductive part is getting matured first, pollen release हो जाएंगे, उसके बाद उस plant के stigma receptive होंगे, that is called protandry. Proto means first and rose means male. So male reproductive part is getting matured first, and the example is very common, that is your maize or your sunflower. Okay. On the other hand, in some plant like Mirabilis jalapa, 4 o'clock plant, what happens? The female reproductive part get matured first and then the pollen release, that is called protogamy. So इस case में you could see the plant, whether the plant is bisexual, हालांकि plant bisexual है, but it is preventing the self pollination, thus inbreeding. After dichogamy, the second outbreeding device is the physical distance. Physical distance is also observed in some bisexual flowering plant species. How this works, you could imagine कि एक bisexual flower है बेटा, like this. These are the petals, these are the sepals, okay? And here is the ovary, here is the style, and here is the stigma. Okay, this kind of flower is there, and the anthers are here. So what kind of flower it is? Bisexual or unisexual? It is a bisexual flower, but you could see the male and female reproductive parts are far apart from each other. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसी फ्लावर के एक दूसरे से बहुत दूर दूर प्रेजेंट है. इज इट और नॉट? सो व्हाट यू थिंक, देयर इज अ चांस कि यहां से जब पॉलन रिलीज होंगे एयर में तो वो इस स्टिग्मा पे आएंगे. देयर इज अ चांस. कितने ज्यादा चांस है कि अगर पॉलन यहां से इसी फ्लावर को एक दूसरे फ्लावर से कंपेयर करो, Uday, you are saying that less chances are there.
सो यू कुड सी दीज आर द टू फ्लावर्स, दोनों बाइसेक्सुअल है। एक में तुम देख रहे हो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, और दूसरे में तुम देख रहे हो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पास पास प्रेजेंट है। जब इस एंथर से pollen रिलीज होंगे तो ये रहा स्टिग्मा, वेरी इजीली दे कैन डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा, but here you could see large physical distance is there between the anther and the stigma. Thus in this bisexual flower very less chance is there कि इसी के pollen इसी के stigma पे arise करेंगे. Am I right? So in some of the flowering plant species what happens, the physical distance between the male and female reproductive part of the same flower are too large, and thus the very less chances are there of self pollination or zetynogamy and autogamy. Is it clear? Second outbreeding device is clear. Now come to the third one. Third one is called self incompatibility. What it is called? Self incompatibility. Now this word is made up of compatible. Compatible, that means right type. What is means? Right type. Incompatible, in means not right type. If something is not of right type, अगर कोई चीज सही तरह की नहीं है तो उसको बोलेंगे incompatible. And self means खुद का. That means it is a genetic phenomena in flowering plant in which their self pollen is incompatible for them. ये एक ऐसा जेनेटिक फिनोमेना है फ्लावरिंग प्लांट में जहां पे कि उनका खुद का पॉलन इनकम्पैटिबल होता है. दैट मींस इट इज ऑफ रॉन्ग टाइप, नॉट ऑफ राइट टाइप. ये कैसा मैकेनिज्म है? इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म. व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म इट इज? जेनेटिक मैकेनिज्म. जब हम बात करते हैं जेनेटिक मैकेनिज्म की, दैट मींस सम जीन्स आर इन्वॉल्वड हियर. हालांकि ये पूरा मैकेनिज्म अब तक साइंटिस्ट ने पूरी तरीके से समझा नहीं है, बट साइंटिस्ट मानते हैं कि प्लांट्स में कुछ जीन्स होती हैं जिनको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबल जीन्स. व्हाट काइंड ऑफ जीन्स दे आर? दे आर सेल्फ इनकम्पैटिबल जीन्स. एंड अगर दो फ्लावरिंग प्लांट की वो जीन्स मैच कर जाती हैं, अगर दो फ्लावरिंग प्लांट्स की वो जीन्स मैच कर जाती हैं, तो फिर उसका पॉलन उसी के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, दिस इज अ स्टिग्मा. ओके, और इसकी सेल्फ इनकम्पैटिबल जीन है S1 S1. ओके, अब दो पॉलन है. एक पॉलन जो इसी फ्लावर से डेवलप हुआ है उसमें भी सेम जीन प्रेजेंट होंगी S1, और एक पॉलन जो किसी और प्लांट से डेवलप हुआ है इसी स्पीशीज के, उसमें जीन तो होगी बट वो थोड़ी डिफरेंट होगी. तो जब इन दोनों, यू कुड सी हियर दिस स्टिग्मा इज हैविंग द जीन S1 S1 एंड पॉलन इज हैविंग द S1 एंड S2. तो अगर सेल्फ पॉलन आके अराइज करेगा तो सेल्फ पॉलन के पास भी वही जीन होगी जो स्टिग्मा के पास होगी. जीन्स मैच कर जाएंगी और स्टिग्मा इस पॉलन को एज ए इनकम्पैटिबल पॉलन आइडेंटिफाई करेगा. ये पॉलन स्टिग्मा पे आने के बाद भी जर्मिनेट नहीं करेगा. तो क्या हुआ? यू कुड सी बेटा, द जीन्स आर देयर विच आर कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबल जीन्स. इन जीन्स को क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबल जीन्स बोलते हैं. तो अगर सेम फ्लावर का स्टिग्मा और उसी का पॉलन है तो एक ही फ्लावर के ना, दैट मीन्स उन दोनों के पास जीन सेम होंगी. अगर सेम जीन वाला पॉलन स्टिग्मा पे अराइज करता है तो स्टिग्मा उस पॉलन को एज ए इनकम्पैटिबल पॉलन आइडेंटिफाई करेगा एंड दिस पॉलन फेल्स टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा. ये पॉलन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट ही नहीं करेगा. गॉट इट? इफ द पॉलन ऑफ अदर फ्लावर, किसी और फ्लावर का पॉलन आता है तो उस फ्लावर, उस पॉलन के पास जीन अलग होगी. हियर यू कुड सी इट इज हैविंग द जीन S2. When this pollen will arise, तो ये S2 स्टिग्मा की जीन से अलग है. Thus the stigma will identify this pollen as a compatible pollen and allow its germination. So here you could see यहाँ किस बेस पे डिटरमाइन हो रहा है कि कौन सा pollen germinate होगा और कौन सा नहीं, या आप कह सकते हैं किस बेस पे compatibility of the pollen is determining. It is based on genes. So it is a genetic mechanism of
determining which pollen is compatible and which pollen is incompatible. तो there are some flowering plant, कुछ flowering plant ऐसे हैं बेटे जिनमें self pollen is incompatible. That means उसी flower या उसी plant का pollen stigma पे कैसा identify होता है? It identify as incompatible. उसको इनकम्पैटिबल या रॉन्ग टाइप आइडेंटिफाई किया जाता है एंड देन दैट पॉलन इज फेल्स टू डेवलप. वो पॉलन जर्मिनेट नहीं कर पाता है. गॉट इट? So this is the third mechanism which prevents the inbreeding and promotes the outbreeding. इस केस में जब सेल्फ पॉलन जर्मिनेट ही नहीं होगा तो फिर कौन से पॉलन जर्मिनेट होंगे? जो किसी और प्लांट के आए होंगे. That means क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है. Now after these three mechanisms, now the fourth mechanism that is developed in the flowering plant to prevent the self pollination and allow the cross pollination. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. am I right? तो किन फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है? बाइसेक्सुअल में. सो कुछ फ्लावरिंग प्लांट ने क्या कर लिया बेटा, जैसे पपाया हो गया या मेज हो गया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर डेवलप करे. यूनिसेक्सुअल फ्लावर. सो दीज यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट्स द ऑटोगेमी. जब एक फ्लावर में सिर्फ मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है, दोनों एक साथ प्रेजेंट ही नहीं है, एक फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा दोनों एक साथ है ही नहीं, तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन उसी के स्टिग्मा पे आ जाए. गेटिंग द कंसेप्ट? So some of the flowering plant develop the unisexual flower. Now if the plant is having the unisexual flower, तो दो कंडीशन आती है बेटा यहाँ पे. If the plant is having the unisexual flower, the plant could be monoecious and plant could be dioecious. Because ध्यान में रखो, we are talking about unisexual flower. देखो एक प्लांट ऐसा भी हो सकता है जिसपे एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी हो और एक उसी प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर भी हो. तो ये फ्लावर कैसे हो गए? इस फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ये मेल फ्लावर है, इस फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ये फीमेल फ्लावर है. बट तुम प्लांट देखोगे तो प्लांट के पास तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो कैसा प्लांट हो गया? मोनोशियस प्लांट. गॉट इट? सो इस केस में आप देख रहे हो, बिकॉज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर देयर, तो यहाँ पे ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है. बिकॉज फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ऑटोगैमी क्या होती है? द अराइवल ऑफ एंड पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. तो वो तो चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है. बट यहाँ तुम देख रहे हो जेटिनोगैमी इज पॉसिबल, कि एक ही प्लांट के फ्लावर से निकला पॉलन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए. Getting the concept? So the monoecious plant that has unisexual flower, like in case of maize, they prevent the autogamy, but zetinogamy can't be prevented here. But अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा केस, when the plant is dioecious and having the unisexual flower, like in papaya, so one plant is having the male flower, so it is a male plant, and another plant is having the female flower, so it is the female plant. So इस केस में तुम देख रहे हो ऑटोगैमी भी पॉसिबल नहीं है और जेटिनोगैमी भी पॉसिबल नहीं है. द ओनली पॉसिबल मैकेनिज्म इन दिस केस इज द xenogamy, that is your cross pollination.